السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درخشاں حصہ 2 سبق نمبر 6 مضمون عالمی حدت گلوبل وارمنگ، اس سے متعلق پڑھیں گے ہم۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم چونکہ یہ مضمون ہے، اس مضمون سے متعلق ہم جان لیں کہ مضمون کسے کہتے ہیں، مضمون کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ سبق نمبر 6 عالمی حدت گلوبل وارمنگ، مضمون کا تعارف۔ مضمون کسے کہتے ہیں، مضمون کتنی قسموں کا ہوتا ہے، کس کس طرح کے مضمون ہوتے ہیں، اسی سے متعلق اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ مضمون ایک قدیم نثری صنف ہے۔ مضمون ایک قدیم کے معنی پرانا کیا آتا ہے، اور صنف کے معنی قسم کے آتے ہیں۔ تو مضمون ایک قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر سیر حاصل بحث کیا جاتا ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، مضمون کہتے ہیں۔ یہ تعریف یاد کیجئے گا آپ لوگ، چونکہ ایگزام میں پوچھتے ہیں کہ مضمون کسے کہتے ہیں۔ مضمون ایک قدیم نثری صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع پر سیر حاصل بحث کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے، یعنی چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی۔ طویل کے معنی لمبا، اور مختصر کے معنی آتا ہے چھوٹا، بہت کم۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی۔ ضرورت اور معیار کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے۔ تو مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی، ضرورت اور معیار کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے۔ آج کل تو ابتدائی درجات سے، یعنی شروع درجات سے، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وغیرہ سے ہی کا ہے، شروع کلاس ہی سے بچوں کو جو مضمون لکھنے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے مضمون لکھا جائے گا، مشق کرایا جاتا ہے۔ تو یہ تو عام بات ہے۔ یہ آج کل ابتدائی درجہ یعنی شروعاتی درجات سے، آج کل تو ابتدائی درجات کے بچوں کو بھی مضمون نویسی یعنی مضمون لکھنے کا طریقہ، آج کل تو ابتدائی درجات کے بچوں کو بھی مضمون نویسی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ کسی مشق کرائی جاتی ہے، مضمون نویسی کی یا مضمون لکھنے کا۔ مضمون نگاری کے فن میں مضمون نگاری کے فن میں کافی وسعت یعنی کشادگی ہے۔ وسعت کے معنی کشادگی۔ مضمون نگاری کے فن میں کافی وسعت اور تنوع ہے، یعنی کئی قسم کے ہوتے ہیں وہ۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے علمی مضامین، اسی طرح سے سائنسی مضامین، مذہبی، اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں بتایا آپ کو مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جیسے علمی مضامین، سائنسی مضمون، مذہبی، اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں کافی آزادی اور کشادگی ہے۔ کشادہ کے معنی جو ہے نا پھیلا ہوا۔ ہم ایک معمولی جاندار اور بے جاندار چیزوں پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کلاسوں میں جو ہے نا بچوں کو آتا ہے کہ گائے پر لکھیے، تو ہاتھی پر لکھیے، بیل پر لکھیے، کتا پر لکھیے، ٹھیک ہے، اسکول پر لکھیے، اسی طرح سے جو ہے نا گھر پہ لکھیے، گاؤں پہ لکھیے۔ تو ہر طرح کے مضمون جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو چھوٹا ٹاپک دے کر لکھا جاتا ہے، تاکہ بچے جو ہے نا شروع ہی سے اس کو مضمون لکھنے کے طریقہ معلوم ہو جائے اور لکھنے لگے وہ۔ ہم ایک معمولی جاندار اور بے جاندار چیزوں پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسکولی معیار کے مضامین میں عنوان کی تشریح، اس کی صفات اور عیوب پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی مضمون نویسی کی روایت کا آغاز یعنی شروعات فورٹ ولیم کالج کے قیام سے ہوتا ہے۔ یعنی مضمون نویسی کی روایت، مضمون لکھنے کا جو رواج کب سے شروع ہوا، تو کہہ رہا ہے مضمون نویسی کی روایت کا آغاز، شروعات جو ہے نا فورٹ ولیم کالج کے قیام سے ہوتا ہے۔ جب یہ کالج جو ہے نا قائم ہوا تھا تو اس وقت جو ہے نا مضمون نویسی کا طریقہ جو ہے نا شروع ہو گیا تھا، اور روایت آج بھی قائم ہے، کیا ہے وہ لکھنے کا آج بھی قائم ہے۔ اردو نثر کے مشہور مضمون نگاروں میں، ٹھیک ہے، اردو نثر کے مشہور مضمون نگاروں میں کن کن لوگوں کا نام آتا ہے، یہ بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔
तो आपको याद करना है, आपको सबसे पहले आता है सर सैयद अहमद खां का, सर सैयद अहमद खां, मोहसिनुल मलिक, वक़ारुल मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन नज़ामी और रशीद अहमद सिद्दीकी वगैरह की शख्सियत नहायत क्या है, नहायत। तो ये लोग जो है ना, जब ये मजमून लिखने का जो है ना रिवाज शुरू हुआ, तो इन लोगों ने जो है ना सबसे पहले मजमून नगारी लिखना शुरू किया, जिसमें सरे फहरिस्त जो है ना सर सैयद अहमद साहब का नाम आता है। ज़ेर निसाब मजमून एक साइंसी मजमून है जिसका मौजू ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत यानी शिद्दत, गर्मी या ग्लोबल वार्मिंग से वार्मिंग है। ज़ेर निसाब मजमून एक साइंसी मजमून है जिसका मौजू ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत या ग्लोबल वार्मिंग है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से हमारी ज़मीन का हरारत करें, गुज़िश्ता 4 दहाइयों से हमारी ज़मीन का हरारत यानी शिद्दत, गर्मी बतदरीज यानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस दर्जा हरारत में औसत इजाफा हो गया है। उसे साइंस की ज़बान में जो हमारे ज़मीन की हरारत जो बढ़ती जा रही है, तपिश बढ़ती जा रही है और तमाज़े से बढ़ती जा रही है, तो साइंस की ज़बान में इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो उसे साइंस की ज़बान में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला बन गया है। सिर्फ जो है ना हमारे मुल्क की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। ये दुनिया के साइंसदां उसके लिए फिक्रमंद है, दुनिया के साइंसदां उसके लिए फिक्रमंद है, सोच में है कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, और उससे बचने के लिए गौर फिक्र किया जा रहा है। और कुछ मुल्कों में अमली अक़दाम भी किए जा रहे हैं, यानी लोग कर भी रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए काम। इस आलमी मसले की बुनियादी वजह करें, इसकी वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है? इस आलमी मसले की बुनियादी वजह ग्रीन हाउस के गैसों के असरात बेशुमार कल कारखानों की बुनियादी वजह ग्रीन हाउस की गैसों के असरात बेशुमार कल कारखानों का खुलना, तेजी के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा है। चूंकि आप मेथन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। मेथन एक गैस है जो कहां से निकलती है? इतना मेथन गैस धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज्यादा निकलती है। जमीन की दर्जा हरारत बढ़ने से, जमीन के दर्जा हरारत बढ़ने से पौधों का खत्म हो जाना और खतरनाक बीमारियों में इजाफा, तूफान, सैलाब और कहत का सामना जैसे हालात और हादसात के हम शिकार होते जा रहे हैं या हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और उससे बचने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को कम करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इस पर कंट्रोल करें, इसको कम करें, तो क्या करना होगा? हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और उससे बचने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को कम करना होगा। जब वो कम होगा तो फिर क्या इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएंगे। यहाँ तक कि दरख्त को एक तहरीक की शक्ल दी जाए लगाने की, कि हर आदमी लगाए इसको, तभी हम इस आलमी मसला से निजात पा सकते हैं और छुटकारा पा सकते हैं। सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसाला है? मुनासिब, खुशगवार, संगीन, मोतदिल। तो ये संगीन मसला है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो 31% जो इजाफा हुआ है इसमें। जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 75 सेल्सियस जो है ना बढ़ गया है। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो दीमापुर में ये हुआ था। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 में हुई थी कॉन्फ्रेंस। मुख्तसर सवालात के जवाब भी सुन ले। जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? हम लोग जिस जमीन पर बसते हैं वह एक क्या है? सैयारा है। यह जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सैयारों का माहौल, पौधों
और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो ये बहुत ही गर्म में या बहुत ठंडी। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर बहुत मौजू और मुतदिल है, इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर पाए जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? जवाब है, पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तस्करा बहुत हो रहा है, यानी जिक्र हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फिक्रमंद है। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादले ख्याल हुए और उससे मुदाफ़ात के लिए उन ममालिक में कई इक़दाम किए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? गुज़िश्ता 30-40 सालों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहौलियात के माहिरीन ने तवाज़ुन अर्ज़ी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं? हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला पैदा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस की मिकदार है, जिसे साइंस की ज़बान में क्या कहते हैं? जिसे साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफताब की जो शुआएं आती है वह उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती है और उसकी वजह से ज़मीन का माहौल क्या होता है? गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसका दर्जा हरारत क्या होता है? बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए स्टूडेंट को, तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? नागालैंड के दीमापुर में मुनाकिद बालो ज्ञान कांग्रेस में आलमी गिर शोहरत याफ्ता साइंसदान और साबिक जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ये जादुई मंत्र बताया था कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त लगा दे तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसाइल से महफूज रह सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में खुदा हाफिज़।